ને મન દીકરી એટલે વાલનો દરિયો, પણ આ દીકરી પારકી થાપણ ગણાય છે અને એટલે જ યોગ્ય ઉંમરે એને વળાવવી જ પડે. આ સામાજિક પ્રસંગો માતા પિતાને મન મંગલ અવસરો હોય છે, પરંતુ ક્યારેક આવા મંગલ અવસરની તક આપ્યા વિના જ્યારે દીકરી કોઈ અવળું ઉતાવળું પગલું ભરીને બેસે ત્યારે મા બાપનું હૃદય વેદનાથી ભરાઈ જતું હોય છે. માતા પિતા જે લાડકોડમાં દીકરીઓને ઉછેરીને મોટી કરે છે, એના સુખી ભવિષ્યના સ્વપ્નાઓ જોવે છે, તેના માટે દિવસ રાત મહેનત કરી તેના ભણતર, અભ્યાસ, સંસ્કાર અને ઘડતરમાં તે પોતાનું સર્વસ્વ ન્યૂછાવર કરી દેતા હોય છે. અને આવા માતા પિતાના હૃદયને જ્યારે ઠેસ લાગે ત્યારે કઈ રીતે આ વેદનાને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવી એ પણ એક વેદનાનો વિષય છે. માતા પિતાની લાગણીઓને સમજવી એ દરેક યુવાન યુવતીઓનું કર્તવ્ય છે. તો માતા પિતાના આ ભાવને વ્યક્ત કરતું એક સુંદર મજાનું ગીત અશોકભાઈ પાસેથી આપણે સાંભળીએ. જેને સારામાં સારા એસએસસીમાં કે 12થમાં કે ગ્રેજ્યુએશનમાં સારામાં સારા માર્ક્સ આવ્યો હોય અને માતા પિતા એને પીઠ ન થાબડી હોય એવી એક પણ વ્યક્તિ હોય તો હાથ ઊંચો કરે. અથવા તો ફેલ થયા હોય ને માતા પિતા એમ કર્યું હોય કે ભાઈ તું ઘરેથી ચાલ્યો છે, મને પોસાય એવું નથી, એવું પણ જેને કહ્યું હોય હાથ ઊંચા કરે. એવા પણ નથી. એટલે ખરેખર દરેકના માતા પિતા બધાને અદ્ભુત પ્રેમ આપે છે અને એ માતા પિતાનું જ આ ભક્તિપદ ચાલી રહ્યું છે.
યુગરાજભાઈ પધારી રહ્યા છે એ આવે ત્યારે બંને હાથ બધાના ઉપર છે કે એક સરસ મજાનો માહોલ ઉભો થઈ જવો. કહેવાય છે કે કોઈ વૃક્ષને જ્યારે ઉખેડી નાખવું હોય ત્યારે તેના મૂળિયા સહિત તેને ઉખેડવું પડતું હોય છે. આજે ભારતીય સંસ્કૃતિના મૂળિયા સાથે પણ સાંસ્કૃતિક આક્રમણો દ્વારા આવી જ કંઈક ચહલપહલ ચાલી રહી છે અને આ ચહલપહલમાં સૌથી વધુ જવાબદાર પરિબળો જો કોઈ હોય તો ટીવી, ફેશન, ભૌતિકવાદ, વ્યસન અને આ બધામાં જાણે અજાણે ગરકાવ થઈ જતી આપણી આજની યુવા પેઢી. કોઈ પણ રાષ્ટ્રમાં યુવાન એ એની સંપત્તિ ગણાય છે અને યુવાન કન્યા એ તો સમાજની કુલ દીપિકા છે. દીકરીને એટલે જ કુલ દીપિકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પણ આ જ દીકરી મુગ્ધાવસ્થાની કોઈ ક્ષણે જ્યારે કોઈ ખોટો નિર્ણય કરી બેસે, કોઈ ઉતાવળું પગલું ભરી બેસે, ત્યારે એ દીકરી કુલ દીપિકા બનવાને બદલે કુળની અને શાસનની ગરિમાને કલંક પહોંચાડતી હોય છે. માનીએ કે ન માનીએ પણ સમાજમાં આવી ઘટનાઓ છાશવારે બનતી રહે છે. દીકરીઓનું ઘરેથી ભાગી જવું, છૂટાછેડાના બનાવો અને આવા અનેક સામાજિક દુર્ઘટનાઓથી જ્યારે સમાજ ત્રસ્ત બની રહ્યો છે, આજે યુગરાજજી જૈન આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. યુવાનીના દ્વારે ઉભેલી દીકરીઓને, મુગ્ધાવસ્થાના ઉંબરે ઉભેલી બહેનોને આજે કંઈક કહેવું છે કે તું જો કોઈ ખોટો રસ્તો પકડતી હો તો બેના તું પાછી વળ. તું કોઈ ઉતાવળિયો નિર્ણય લે તે પહેલા બેના તું પાછી વળ. કોઈ પણ નિર્ણય લેતા પહેલા બેના તું તારા માતા પિતા સાથે વાત કર. આવી જ કંઈક એક સામાજિક જાગૃતિના હેતુથી આજની આ સંસ્કરણ શિબિરનું આયોજન આપણે કર્યું છે અને એમાં જ્યારે આપણી વચ્ચે પ્રખર વક્તા શ્રી યુગરાજજી જૈન પધાર્યા છે ત્યારે ભાવનગર સંઘ વતી આપણે તેમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. વાતાવરણમાં વ્યસન અને ફેશનથી ત્રસ્ત બનેલી યુવા પેઢી
એના નૈતિક મૂલ્યો વિસરતી જાય છે ત્યારે ઘણી બધી સામાજિક દુર્ઘટનાઓ સમાજને, પરિવારોને તોડતી હોય છે. અને એમાંય મુક્તાવસ્થાના કોઈ નિર્ણયોમાં કોઈ ઉતાવળ થઈ જાય, કોઈ ભૂલ થઈ જાય, કોઈ ગફલત થઈ જાય ત્યારે જિંદગી આખી વેડફાઈ જતી હોય છે. આજે આ યુવા મિત્રોને કહેવું છે કે આપણી જિંદગી એ વેડફી નાખવા માટે નથી, અને આપણી જિંદગી ઉપર માત્ર આપણો જ અધિકાર પણ નથી. કારણ કે જે કુળમાં આપણને જન્મ મળ્યો છે, જે સમાજમાં આપણે જીવીએ છીએ, એ કુળના, એ સમાજના, એ માતા પિતાના કેટલાય ઉપકારો આપણા ઉપર હોય છે. અને આ ઉપકારોનો ઋણ ચૂકવવું હોય તો જિંદગીને એવી મજબૂત બનાવવી પડશે એવા સારા કાર્યોથી. આશા છે સામગ્રી પૂજાની ભલે કાયા, હે ભલે કાયા રાગ થઈ શકે, હે મારું જીવન સુગંધી બને. એક જ અરમાન છે મને, મારું જીવન સુગંધી બને. ફૂલડા બનો કે ધૂપ સળીના, આશા છે સામગ્રી પૂજાની નામ. ભલે કાયા રાગ થઈ શકે, મારું જીવન સુગંધી બને. એક જ અરમાન છે મને, મારું જીવન સુગંધી બને. ગગને કારાશ બધી ઉર્મા સમાવે, કોઈ સાગર મીઠી વર્ષા વરસાવે. ગગને કારાશ બધી ઉર્મા સમાવે, કોઈ સાગર મીઠી વર્ષા. યુવરાજજી જૈનનું પ્રવચન થોડી જ ક્ષણોમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. અને હવે આપણે બધી જ ક્રિયાઓને માંગલિક રાખી બહેનોના મંડળને પણ જે ઇનામો આપવાના છે એ અહીંયા આગળ પૂરું થઈ ગયા બાદ અહીંયા સુરાભાઈના હાથે બધાને ઇનામ આપવાના છે. અને હવે એક જોરદાર તાળીથી વધાવી અને યુવરાજજીને વિનંતી કરીએ કે તમારા મિશનની અંદર ભાવનગર શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક સભા સંઘ તમને સાથ અને સહકાર આપે છે. હવે આપણે युवराज जैन ने सांभळी. भावों का नगर, जहां भावों के साथ यात्रा की जाती हो वो नगर. ऐसे नगर में विराजमान रहने वाले आप सभी परमात्माओं को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं. जैन समाज के हार में पिरोए गए सभी बेशकीमती हीरे और मोतियों को भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं. चारों ओर खुशनुमा माहौल नजर आता है, प्रीत की गागर में डूबा ये हॉल नजर आता है. सच कहता हूं मैं आज अपने दिल की जुबान से कि मुझको तो बस आज यहाँ पर लाडली बहनों का दीदार नजर आता है, लाडली बहनों का दीदार नजर आता है. सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगा भरत भाई को और उनके सारे सहयोगियों को, संजय भाई को, जिन्होंने इतनी जनमेदनी को यहां इकट्ठा किया. मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी तादाद में जिन शासन के हार में पिरोए गए हीरे और मोतियों से मुझे मिलने का सौभाग्य मिलेगा. बहनों, कुछ दिल के अरमान लेकर आया हूं, कुछ दिल की बातें करने के लिए आपसे आया हूं. बेटा, एक बात कुछ बहनों से बातें करने के लिए आया हूं. जब जब भी मैं कोई प्रश्न पूछूं, उन प्रश्नों का उत्तर बड़ी बेबाकी से जितनी भी कुंवारी बहनें मेरे सामने बैठी हैं उनको देना है. आप मेरे प्रश्नों का जवाब दोगी, तुम्हारे भैया को बहुत अच्छा लगेगा.
अगर गलत जवाब भी होगा तब भी मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया तो शायद मैं नाराज हो जाऊं। अब फैसला आप पर है कि आप युवराज भैया को खुश करके भेजना चाहते हैं या नाराज करके। मैं किन्हीं 2 बहनों को यहाँ मेरे पास आमंत्रित करना चाहता हूँ, कोई भी 2 बहनें यहाँ जल्दी से आ जाए। इतनी बहनें बैठी हैं और एक भाई पुकार रहा है और बहनें अभी तक यहाँ आई नहीं। कोई भी 2 बहनें जल्दी से यहाँ आ जाएं। एक बहन यहाँ खड़ी हो गई। आओ बहन। नहीं, ये बहन मेरे हाथों में राखी बांध रही है। आज से आप और हम भाई और बहन हुए। बहन, तुम्हारा नाम क्या है? श्रद्धा। और आपका नाम है? श्रद्धा और जैनी के माध्यम से आप तमाम बहनों के साथ मैंने आज भाई और बहन का रिश्ता जोड़ा है। मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब खूब शुभकामनाएं। बैठो। मेरी बहनों, एक बात बता देना चाहता हूँ, इस त्योहार के बारे में आपसे बढ़कर और कौन ज्यादा जान सकता है। जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता है, हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, लंबी उम्र की कामना करती है भाई के लिए, उसके दीर्घायु होने की प्रार्थना करती है ईश्वर से, और भाई वचन देता है बहन को कि जब भी संकट की घड़ी में आप याद करोगी, भैया दौड़ कर आएगा। मैं भी आज आपको ये वचन देने के लिए आया हूं कि जब भी कोई बहन संकट की घड़ी में युवराज भाई को याद करेगी, युवराज भैया मौत से चंद सांसें उधार लेकर भी तुम्हारी रक्षा के लिए दौड़ कर आएगा। ये मैं विश्वास देने के लिए आपके पास आया। लेकिन मेरी बहनों, अब एक वचन मैं आपसे भी चाहता हूं, और वो वचन ये है कि अब जो भी मैं बात करूंगा, उन बातों का निर्वाह करने का वचन मैं आपसे चाहता हूं। क्या आप युवराज भैया को ये वचन देने के लिए तैयार हो? हाँ या ना में जवाब दो मेरी बहन। बहुत अच्छी बात है। मैं उस जैन समाज की बात करता हूं जहां भगवान आदिनाथ ने पूरी दुनिया को असी, मसी और कृषि का महामंत्र दिया। मैं उस जैन समाज की बात करने आया हूं जहां भगवान महावीर ने पूरी दुनिया को अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत का मूल मंत्र दिया। मैं उस जैन धर्म की बात करने आया हूं जहां पूर्णिया श्रावक की साधर्मिक भक्ति आपसे छिपी हुई नहीं है। मैं उस जैन समाज की बात करने आया हूं जहां राज्य पर संकट आने पर भामाशाह ने तिजोरियों के ताले खोल दिए। मैं उस जैन समाज की बात करने आया हूं जहां चंदन बाला और मैना सुंदरी की कथाएं आपसे छिपी हुई नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जहां जैसी जगह मिल जाए बैठ जाए। वहां कुछ लोग मेरे सम्मान में खड़े हैं, मैंने उनका सम्मान स्वीकार कर लिया है। वे अगर बैठ जाएं तो कृपा होगी। तो मेरी बहनों, कुछ दिल की बात करने के लिए आपके बीच आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मेरी बहनों, आप शिविर में क्यों आई? कोई बहन बताएगी? मेरे प्रश्न जितने भी होंगे कुंवारी बहनों से होंगे। मेरी बहनों, शिविर में क्यों आई? वहीं से खड़ी होकर बात कर दीजिए कि इसलिए हम आए शिविर में। मैं दावा करता हूं, वादा करता हूं, मेरे प्रश्नों का जवाब अगर आप देती रही, हौसला आप दिखाती रही, तो आज की रात मैं आपको यहां से झांसी की रानी बनाकर भेजूंगा। ये विश्वास के साथ कहने के लिए आया हूं। लेकिन मुझे आपका सहयोग चाहिए, आपका हौसला चाहिए, आपकी ताकत को आजमाना चाहता हूं। और एक बात ध्यान रखना मेरी बहनों, एक ही लाइन में अगर ग्रंथ दे दूं तो आशीर्वाद देना, शुभकामनाएं देना। कभी भी अपने जीवन में कायर बनने का प्रयास मत करना, कमजोर बनने का प्रयास मत करना। कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। इसलिए मेरी बहनों, मैंने आपसे पूछा आप इस शिविर में क्यों आई? अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। हाँ बहन बोलो, बेटा बताओ। कुछ सीखने के लिए, संस्कार समझने के लिए। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल में सबका यही जवाब होगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं मेरी बहनों, मैं कोई संस्कार, ये इको तो नहीं है भाई, इको बंद करो। मैं कोई संस्कार देने के लिए नहीं आया। एक भाई अपनी बहनों से बात करने के लिए आया है।
संस्कार तो उन्हें दिए जाते हैं जिन्हें के पास संस्कार नहीं होते। आप तो सभी संस्कारवान बहनें मेरे सामने बैठी हैं। अगर आप में संस्कार नहीं होते तो युवती संस्कार शिविर के नाम से ही घर से भाग कर चली जाती, दूर चली जाती, यहाँ आती भी नहीं, कहीं बगीचे में बैठती, टीवी सीरियल के सामने बैठकर सास भी कभी बहू देख रही होती, सीरियल में मदमस्त हो जाती है। मैं एक काम के लिए खास तौर से आया हूं कि जो किसी कारणवश आज आपकी सखी, आपकी सहेली, आपकी बहन जो यहाँ नहीं आ पाई है, उन तक मेरा पैगाम पहुंचाने का काम आज से आपको करना है। जो बात मैं आपको करूंगा, मेरी बहनों, आप संस्कारवान हैं, आपको बड़ा मैं क्या संस्कार दूंगा, लेकिन मेरी बातों को उन तमाम बहनों तक पहुंचाने कर एक जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए आपको आज यहाँ बुलाया गया है और ये जिम्मेदारी मैं आपके कंधों पर डालकर जाना चाहता हूँ। अब जैसा आप ये देख रहे हैं, ये हॉल बना हुआ है, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। किसी भी महल को खड़ा करना होता है तो पिलर्स की आवश्यकता होती है। हम भी संस्कारों का महल खड़ा करने जा रहे हैं। मैं 4 प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा और उन प्रश्नों का आपको जवाब देना है। एक एक प्रश्न एक एक पिलर के रूप में हम खड़े करने जा रहे हैं, समझ गए मेरी बहनों। अब मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है, एक बात मेरे खास तौर से आपके दिल से मैं पूछना चाहता हूं, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं कई प्रश्नों बहनों को नहीं पूछकर कोई एक बहन भी बता देंगे, क्योंकि समय की बहुत सीमाएं, कम से कम मुझे 3 घंटे एक शिविर में चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे मैं आपको उठने नहीं दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। लेकिन मुझे ये प्रश्नों का जवाब जितना जल्दी दोगी उतना अच्छा रहेगा। मेरे बहनों, हमने ये जो जीवन पाया है उसका क्या लक्ष्य है? कोई जवाब नहीं। हाँ बहन बताओ। बेटा तू यहीं आ जा, ये एक ही दिख रही है जो जवाब देने के लिए तैयार। बेटा पहले तो नाम बताओ तुम्हारा और इसके सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ बेटा खड़ी हो जाओ, बताओ। ये लो माइक। हमारे जीवन से उद्देश्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए और हमारे नाम को कुछ हम बनना चाहते हैं, इसलिए कोई हमारे जीवन में लक्ष्य हो उसे पूरा करने के लिए हम अपनी डिग्री और हमारे नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। हमारे जीवन का लक्ष्य यह है संयम मार्ग को अपनाना। हमारा जीवन का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। लेकिन अगर हम उस चरम तीर्थंकर की स्थिति तक नहीं पहुंच सके, उस चरम स्थिति तक नहीं पहुंच सके, वहां तक नहीं पहुंच सके जहां तक हम लक्ष्य बनाकर आए हैं, इस धरती पर आए हैं, तो कम से कम एक आदर्श श्रावक और श्राविका बनने का संकल्प तो आज हमको लेकर जाना पड़ेगा। यहां से मैं शुरुआत करता हूं। मेरा पहला प्रश्न आपको यह है मेरी बहनों, भारत में कितने महापुरुषों ने जन्म लिया? कोई 2-4 नाम बताओ। अब तो मुझे लगा सभी तरफ से आवाज आने लगे। हाँ बहन बताओ, तुम बताओ, जो अग्रिम पंक्ति में बैठी है। बेटा बताओ, ब्राउन सलवार में जो बैठी है, बेटा बताओ। गांधी जी, शाबाश। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ओके, वेरी गुड। और कोई बहन तुम बताओ, आगे अग्रिम पंक्ति में बैठी है। हाँ बेटा बताओ, कोई 2-4 नाम बताओ। महावीर भगवान, हाँ महावीर स्वामी भगवान, ठीक है। और कोई बहन, शाबाश। वीर सावरकर। और कोई? भगत सिंह, शाबाश। हाँ आंटी ने बताया भगत सिंह। आज सभी चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, पर क्या चाहते हैं? पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। हमारा बेटा शहीद नहीं होना चाहिए। ये स्थिति होती जा रही है मेरी बहनों। मेरे हाँ बेटा बता। स्वामी विवेकानंद, बहुत अच्छी बात, शाबाश। अच्छा आपका काम हो गया हो तो आप बैठ जाए बेटा प्लीज। मेरे प्रश्नों का मेरी बहनों आपने जो जवाब दिया बिल्कुल गलत जवाब दिया। एक भी बहन ने मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया। इधर से आवाज आई महात्मा गांधी। मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना। अब अगर एक एक पंक्ति में, एक एक शब्द में अगर एक ग्रंथ नजर आए तो मेरी बातों को आंचल से बांध कर जाए। महात्मा गांधी ने जन्म नहीं लिया, जन्म लिया है मोहनदास करमचंद गांधी ने। महावीर स्वामी भगवान ने जन्म नहीं लिया, जन्म लिया है वर्धमान ने। स्वामी विवेकानंद ने जन्म नहीं लिया, जन्म लिया है नरेंद्र कुमार ने। मेरी बहनों, महापुरुष कभी जन्म नहीं लेते, वे अपने कर्मों से बनते हैं। अगर आपको भी महान पुरुषों और महान नारियों की श्रेणी में और उस स्थिति तक, उनके समान, उनके उच्च कोटि तक पहुंचना है
तो आपको अपने जीवन में वैसे कर्म करने पड़ेंगे। क्या आप समझती हो कि ब्यूटी पार्लर में जाकर आप महानारियों की श्रेणी में पहुंच सकोगे? कभी नहीं पहुंच सकते। आप कभी बगीचे में बैठकर गुलछरे उड़ाओ, एक दूसरे की निंदा करो, एक दूसरे और अपने सौंदर्य और अपने रूप के अभिमान में मरती रहो, और आप समझो कि आप उच्च कोटि तक, उच्च सीमा तक पहुंच सकोगे? कभी नहीं पहुंच सकोगे। इसलिए मेरी बहनों, पहला पिलर अब हमने खड़ा किया। महापुरुष कभी जन्म नहीं लेते, वे अपने कर्मों से बनते हैं। अगर आपको भी उस दिशा में जाना है, वो बनना है, वहां तक ऊंचाई प्राप्त करना है, तो वैसे कर्म करना आज से ही शुरू कर देना। मेरा दूसरा प्रश्न पिलर के रूप में मैं खड़ा करने जा रहा हूं कि समुद्र में रहने वाली मछली अगर ये कहे कि मैं प्यासी हूं, तो उसको क्या कहा जाएगा? पानी में रहने वाली मछली ये कहे कि मैं प्यासी हूं, तो उसको क्या कहा जाएगा? फिर कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ। जितना आप खुलकर बात करोगे, उतना मुझे खुलने का मौका मिलेगा। मैं विवाद बात कर सकूंगा आपसे मेरी बहनों। या फिर हाथ खड़े करो, ये बहन इस मोहल्ले से बताओ बहन। हाँ, तुम ही बताओ। समुद्र में रहने वाली मछली अगर ये कहे कि मैं प्यासी हूं, तो उसको क्या कहा जाएगा? कुछ भी बोल दे बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। मूर्ख, शाबाश, कितना अच्छा जवाब दिया। और तुम कह रहे थे मैं तो जानते ही नहीं हूं। बेटा क्या नाम तुम्हारा? इसके लिए तालियां होनी चाहिए। मेरी बहनों, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, इसलिए मैं वक्त के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आप भी ध्यान से सुन लीजिए। वक्त से बड़ा नहीं है दुनिया में कोई शख्स। वक्त ही सभी की तकदीर बन जाता है, और वक्त हो बुरा तो वो ठोकरों में रहता है, और वक्त साथ दे तो वही पीर बन जाता है। वक्त पे जो वक्त की नजाकत को जो भांप ले, तो कभी कभी प्यादा भी वजीर बन जाता है। और जिंदगी में वक्त के महत्व को न माने तो महलों का राजा भी फकीर बन जाता है। महलों का राजा भी फकीर बन जाता है। मेरी बहनों, समुद्र में रहने वाली मछली अगर ये कहे कि मैं प्यासी हूं, तो ये उसका दुर्भाग्य है। जिन शासन का अमृत चारों पर बिखरा हुआ पड़ा है, भगवान महावीर के सिद्धांत हमारे चारों तरफ हमको ओत-प्रोत किए हुए हैं। अरे आपके पूर्वजों ने न जाने कितने जन्मों तक पुण्यों का संचय किया होगा, कितना आप लोगों ने पुण्य किए होंगे प्रबल, तब कहीं जाकर आपको ये भारतीय संस्कृति की धरा मिली, ये आर्य भूमि मिली। उसमें भी जैन शासन मिला, जैन कुल मिला, और जैन कुल की बेटियां गलत रास्ते पर चली जाए, जैन शासन को मानने वाली हमारी बेटियां, हमारी बहनें गलत रास्ते पर जाकर अपने जीवन को नरक में धकेलते हैं। ये उसका दुर्भाग्य है। समझ गई मेरी बहनों? इसलिए इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का अवसर आ गया है। कभी भी किसी भी वक्त अपने पांव फिसल सकते हैं। अगर ये बातें याद रखी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप हिमालय की तरह अटल अड़िग बनकर खड़ी रह सकोगे, चाहे इतना ही झंझावात आपको अपने तरफ लपेटने के लिए, नोचने के लिए तैयार जितने ही क्यों ना बैठे हों। मेरा वादा है आपको अड़िग रहना पड़ेगा। अब मेरा तीसरा प्रश्न, एकदम से सिंपल सी अंग्रेजी की 2 स्पेलिंग पूछना चाहता हूं। जब मैं स्पेलिंग पूछूंगा तब आप कहेंगे कि क्यों भैया मजाक कर रहे हो, ये तो कोई लोअर केजी की भी बेटी भी बता सकती है, बच्ची भी बता देगी, आप हमसे क्यों परीक्षा ले रहे हो? मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। कोई एक बहन खड़ी हो जाए, मैं 2 स्पेलिंग पूछता हूं मात्र। बेटा 2 स्पेलिंग पूछ रहा हूं। पेंसिल, रॉन्ग, बराबर बोलो। रॉन्ग, ठीक है, बैठो बैठो। अब बात को ध्यान से सुनिएगा। राजवी, तुम वहां जाकर खड़े हो, मैंने तुम्हें 2 स्पेलिंग पूछी। पेंसिल, मेरी दूसरी स्पेलिंग थी WRONG, रॉन्ग बोला मतलब उसकी स्पेलिंग थी WRONG। मैंने कहा मैं 2 स्पेलिंग पूछ रहा हूं। राजवी, तुम भ्रमित कैसे हो गई? तुम अपने आदर्शों पर अड़िग क्यों नहीं रही? तुम्हारा आत्मबल क्यों डगमगा गया? तुम्हारा कहना चाहिए भैया मैंने जो कहा है वो सही है, कोई गलत साबित नहीं कर सकता। मैंने अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया है, मैंने जिस दिशा में अपना कदम बढ़ाया है, दुनिया की कोई ताकत मेरे कदमों को रोक नहीं सकती। मैं ट्रांसपेरेंट हूं, मैं
अगर रॉन्ग की स्पेलिंग में भ्रमित हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन उस पर अडिग रहकर ये बात करनी चाहिए। बैठो बेटा राज भी, बहुत बहुत इसके सम्मान में एक बार फिर तालियां होनी चाहिए। मेरी बहनों, वासना के भेड़िए चारों तरफ से आपको नोचने के लिए भ्रमित करने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन उस वक्त अगर आप थोड़ी सी कमजोर साबित हो गई, अपने आदर्शों से थोड़ी सी हिलडुल गई, तो उनको सवार होते वक्त नहीं लगेगा। वो डगमगाना कभी मत, अपना विल पावर स्ट्रांग रखना, अपना आत्मबल मजबूत रखना और अपना आदर्श खुद तय करके उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सदैव आतुर रहना, आकुल रहना, व्याकुल रहना। समझ गए बेटा? बहुत अच्छी बात। अब तीसरा पिलर हमने खड़ा किया, अब हम चौथा पिलर खड़ा करने जा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपके श्री चरणों में मेरे दिल की बात पहुंचाना चाहता हूं। एक बलून बेचने वाला, एक गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारा बेचा करता था। हरा, पीला, नीला और सफेद रंग के गुब्बारे वो बेचा करता था। हवा में उड़ा देता था। जब बगीचे के पास जाता, जब स्कूल के पास जाता तो वो हवा में उड़ा देता। बच्चे जिद करते माँ से कि माँ मुझे भी गुब्बारा खरीदना है, माँ मुझे भी गुब्बारा खरीदना है। एक दिन बगीचे के पास वो एक गुब्बारा उसने हवा में उड़ाया। एक 6 वर्षीय लड़का अपनी माँ के साथ वहां आया हुआ था। उस 6 वर्ष के एक लड़के ने उस गुब्बारा बेचने वाले आदमी को शर्ट खींचा और उसको कहने लगा कि अंकल अंकल, क्या काले रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है? अब मुझे बताओ कि उसने क्या जवाब दिया होगा? कोई बहन बताएगी? उस गुब्बारे बेचने वाले ने उस छोटे से 6 वर्ष के इस प्रश्न का, लड़के के इस प्रश्न का क्या जवाब दिया होगा? उसने पूछा, क्या काले रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है? अब माता जी बताइए, आंधी बताइए, आप बताइए। चलो, उड़ता है वो रंग नहीं है, जो गुब्बारे के अंदर की हवा है उससे वो उसको उड़ाती है। तो शाबाश। उस गुब्बारे बेचने वाले ने कहा कि गुब्बारा रंग की वजह से नहीं उड़ता, उसमें क्या है, उसके भीतर क्या है, उस कारण से उड़ता है। देयर इज ए स्पेशल गैस, देयर इज हीलियम गैस, बिकॉज ऑफ हीलियम गैस इट कैन गो टू द स्काई। मेरी बहनों, अगर आपको अपने जीवन में ऊंचाई प्राप्त करना है, आपको अपने जीवन में ऊंची उड़ान भरना है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ऊंचा उड़ना है, तो आपको यू विल हैव टू बी समथिंग स्पेशल। भेड़ बकरियों की भीड़ होती है, शेर और शेरनियों की भीड़ नहीं होती। समझ गई मेरी बहनों? आपको समथिंग स्पेशल बनने के लिए, ऊंची उड़ान भरने के लिए स्पेशल बनना पड़ेगा। आज ही आपको लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने कभी पानी ले जाते हुए पनिहारिन को देखा होगा कुएं पे? देखा? अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना और सुनने से ज्यादा देखना। जब पनिहारिन कुएं पर पानी लेने के लिए जाती है तो वो डोलची, रस्सी को डोलची यानी बाल्टी से बांध के इतनी स्पीड से डालती है, इतनी स्पीड से डालती है, इतनी स्पीड से डालती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन फुट पर रस्सी पीछे बचती है हाथ में तो उसको पकड़ लेती है। क्यों पकड़ लेती है? इसकी गहराई में जाओ, इसकी गहराई में जाकर इसके अंतर्मन से सागर में डुबकियां लगाओ, अमृत मिलेगा, मोती मिलेंगे। मैं वादे के साथ कह सकता हूं। क्यों वो फुट भर की रस्सी पकड़ लेती है? शायद आपका जवाब यही होगा कि कहीं रस्सी हाथ से फिसल नहीं जाए, गुब्बारे की तरह ऊंचाई प्राप्त कर सकोगी। आप अपने कर्मों से अपने जीवन को धन्य कर सकोगी। आपके आदर्श आपको जीवन में ऊंचाई प्रदान करेंगे। इसीलिए आप ये समझो कि फिल्मों में जाकर या टीवी सीरियल के सामने बैठकर कुछ कर सको, कभी नहीं कर सकोगे। आगे बढ़ सको, कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। जीवन को धन्य कर सको, कभी जीवन को धन्य नहीं कर सकोगे। इसलिए मेरी बहनों, ये हमने 4 पिलर खड़े किए। अब मैं आपको पूछूं, स्वामी विवेकानंद का नाम तो सुना ही होगा अभी जैसा बताया। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, धर्म सभा में उन्होंने जब भाषण दिया, पूरी अमेरिकन जनता उनकी दीवानी हो गई। जब पूरी अमेरिकन जनता उनकी दीवानी हो गई, मॉर्निंग वॉक में वे मॉर्निंग में दूसरे दिन सुबह प्रातः भ्रमण के लिए टहल रहे थे, प्रातः भ्रमण कर रहे थे कि 4 महिलाएं उनको देखकर उनके पास आई। ऐसे ही एक बार मैं एक शिविर में सिखा रहा था। दिल्ली में कुतुब मीनार है। मेरी नजर पड़ गई 2 बहनों पर, वो बातें कर रही थी। मैंने समझा कि इन्होंने नहीं सुना मेरी बात को। मैंने पूछा, मैंने कहा बहन मैं क्या बता रहा था, तुम्हें मालूम है? कहते हाँ भैया आप क्या बता रहे थे मुझे मालूम है। तो मैंने कहा बताओ मैं क्या बता रहा था। तो उसने कहा कि आप बता रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। मैं बता रहा था दिल्ली में कुतुब मीनार है, और उन्होंने सुना दिल्ली में कुत्ता बीमार है। आप तो बस
मेरी तरह ध्यान रखिए और मेरे शब्दों के साथ यात्रा कीजिए, अपने मस्तिष्क की यात्रा कराइए, अपने दिमाग की यात्रा कराइए। निश्चित तौर पर कुछ अमृत के मोती मैं आपको यहाँ से देकर जाऊंगा, ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी जब सुबह घूम रहे थे, 4 महिलाएं उनके पास आई। एक महिला ने प्रश्न किया, स्वामी जी कल तो आपने कमाल कर दिया, क्या हुआ कि क्या आपने भाषण दिया? दूसरी बहन ने पूछा, स्वामी जी क्या आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दोगे कि हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल सबसे ज्यादा पवित्र है? स्वामी जी ने कहा कि यमुना नदी है जिसका जल सबसे ज्यादा पवित्र है। एक बहन जो हिंदुस्तान के बारे में जानती थी, उसने कह दिया कि स्वामी जी कल तो आपने ज्ञान की सरिता बहा दी, आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि हिंदुस्तान में यमुना नदी नहीं, गंगा नदी है जिसका जल सबसे ज्यादा पवित्र है। स्वामी जी ने कहा, मेरी बहनों तुम्हारा प्रश्न क्या था? तुम्हारा प्रश्न यह था कि हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल सबसे ज्यादा पवित्र है, इसीलिए मैंने यमुना नदी कहा। गंगा नदी में जल कहां बहता है मेरी बहनों? गंगा नदी में तो अमृत बहता है, अमृत बहता है। आज आपके चारों तरफ भी अमृत का दरिया बह रहा है, संस्कारों के अमृत का दरिया बह रहा है, जिन शासन के संस्कारों का दरिया बह रहा है, धर्म और ज्ञान का दरिया बह रहा है, और उसमें हम अश्लीलता के सागर में डुबकियां लगाएं, अश्लीलता के गटर में नहाने का प्रयास करें, भौतिकवादी आंधी के पीछे दीवाने होते जाएं, फिल्मीकरण कर लें अपने जीवन का। नहीं मेरी बहनों, ऐसा कभी मत करना। एक बात ध्यान से सुन लो, जीवन 3 घंटे का नहीं होता, फिल्म 3 घंटे की होती है। और एक लाइन में एक ग्रंथ और दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, मेरी इस पंक्ति के साथ यात्रा करना। इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना इन्हें गुनाहों में बदलते देर नहीं लगती। अगर बात समझ में आई हो तो निश्चित तौर पर अपने आंचल से बांध लेना। अपनी इच्छाओं को सीमित कर दो, अपरिग्रह, बस अपने जीवन में अपरिग्रह अपना लो, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना इन्हें गुनाहों में बदलते देर नहीं लगती। दूसरे दिन फिर स्वामी जी प्रातः भ्रमण के लिए जा रहे थे। एक नई बहन उनको और कोई मिल गई, उसने पूछा कि क्या स्वामी जी आप अमेरिका आए हैं, ये भगवा धोती और जब्बा पहनकर आ गए, आपको सूट बूट और टाई में आना चाहिए था। क्या मेरी बहनों बताओगे इस प्रश्न का जवाब स्वामी जी ने क्या दिया होगा? कोई भी बहन खड़ी हो जाए जिन्हें मालूम है, और जिन्हें नहीं मालूम है वे इस बात का जवाब तो दें कम से कम कि आपको ये बात मालूम नहीं है। ये बात मालूम है कि ये बात क्यों मालूम नहीं है? ये बात इतना तो मालूम होगा कि ये बात तुम्हें मालूम क्यों नहीं है। कोई नहीं बता पाए। स्वामी जी ने कहा कि माय डियर सिस्टर, इन योर कंट्री अमेरिका टेलर मेक्स ए मैन परफेक्ट, और इन माय कंट्री इंडिया कैरेक्टर मेक्स ए मैन परफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, जिन शासन की बात कर रहा हूं, 3 पंक्ति में अगर आपको पूरा सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन सिखा दूं, समझा दूं, तो ध्यान देना, आशीर्वाद देना मुझे। सम्यक दर्शन इच्छित है, सम्यक ज्ञान अपेक्षित है, और जिसने सम्यक चारित्र को अपना लिया उसका मोक्ष तो निश्चित है, उसका मोक्ष तो निश्चित है। और भगवान महावीर ने बहुत प्यारी बात कही कि स्वयं के वास्ते रोना कोई रोना नहीं होता, और बहकने के लिए पीना कोई पीना नहीं होता। हमें तो भगवान महावीर ने यही सिखाया है, जियो खुद और जीने दो सबको, स्वयं के वास्ते जीना कोई जीना नहीं होता। स्वयं के वास्ते हैं। मेरी बहनों बताओ, आप यहाँ आई हैं, घर जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, खाना खाती है, पिक्चर देखती है, टीवी देखती है, जो कुछ भी आप कर रही हैं, हम कर रहे हैं, हम आए हैं, यहाँ बैठे हैं, ये क्या है? अगर हमने इसके वजूद की डेप्थ में जाने का प्रयास नहीं किया, जीवन को समझने का प्रयास नहीं किया, तो हमारा जीवन जीने का अर्थ क्या हो जाएगा? सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरी बहनों बताओ, जीवन क्या है? क्या जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा का नाम जीवन है? नहीं ना। क्या सोमवार को जन्मे, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बीमार पड़े, रविवार को राम नाम सत्य हो गया? क्या ये जीवन है? तो फिर जीवन क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जीवन बांस की तरह होता है, अंग्रेजी में उसको बंबू बोलते हैं। जीवन बांस की तरह होता है, बंबू की तरह होता है, जो अविवेकी है, जिन्हें जीवन की कीमत मालूम नहीं, जिन्हें जीवन का ज्ञान मालूम नहीं,
जो जीवन से अभी तक परिचित नहीं हुए, रूबरू नहीं हुए, वे पूरे जीवन रूपी बांस को लड़ने लड़ाने में, अभिमान करने में, अहंकार करने में तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, और फिर वो सिर्फ जलाने के काम आता है शमशान घाट पर, पूरा जीवन खत्म। लेकिन जिनमें विवेक है, जिनमें ज्ञान है, समय रहते जिन्होंने जीवन की कीमत की परख कर ली, पहचान लिया, वे समय रहते जीवन रूपी बांस में से बांसुरी बना लेते हैं, बांसुरी, ताकि वे खुद भी जीवन पर सुगम संगीत सुनते हैं और दूसरों को भी सुनने के लिए आनंदित करते हैं। आओ मेरी बहनों, आज ही संकल्प लेकर जाना कि आपका व्यवहार अपने माँ के प्रति कैसा हो, आपका व्यवहार अपने पति के प्रति कैसा हो, अपने पिता के प्रति कैसा हो, पड़ोसियों के प्रति कैसा हो, दूसरों के प्रति कैसा हो, और आप अपने व्यवहार से अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए अपने जीवन रूपी इस बांस में से बांसुरी बनाने की कला सीख लो, तो हर जगह पूजी जाओगी, हर किसी का प्यार पाओगी। आज से मनी मन ये संकल्प लेकर यहाँ से विदा होना, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन 3 प्रकार से जिया जाता है। एक तो मनुष्य जानवर की तरह जीवन जीता है जिसका कोई लक्ष्य नहीं। दूसरा मनुष्य मनुष्य की तरह जीता है जिसमें अपने वो जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है। और तीसरे प्रकार का जीवन जो होता है वो मनुष्य भगवान के समकक्ष आने के लिए जीवन जीता है, भगवान बनने के लिए जीता है। भगवान महावीर ने कहा कि तू ही मूर्तिकार स्वयं, और तू ही है पाषाण, तू ही छैनी और हथौड़ी, तू कर तेरा खुद निर्माण, तू कर तेरा खुद निर्माण, और कोई निर्माण करने के लिए आने वाला नहीं है। तो मेरी बहनों, आपको अपने जीवन की कीमत को समझना पड़ेगा। जीवन की कीमत के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, एक लघु कथा के माध्यम से ध्यानपूर्वक सुनने। एक गांव में मेला लगा, उस मेले में कई लोगों ने दुकानें लगाई। एक भाई के पास पैसा नहीं था, बाप दादों के हाथ के कुछ रुपए, कुछ पत्थर पड़े थे, उन्होंने उस 10 पत्थरों को साफ करके वहां लगा दिया, बैठ गया दुकान पर। एक भाई आया, उसकी नजर उन पत्थरों पर पड़ी, तो उसने कहा ये पत्थर बेचने हैं। उसने कहा हाँ, कितने रुपए लोगे? 100 रुपए लूंगा। उसने कहा 20 रुपए में देना है? तेरे नहीं, सुबह सुबह आए हो, एक बार बोलती बात 100 रुपए में देना है तो मैं खरीद सकता हूँ, मैं बेच सकता हूँ, नहीं तो मुझे नहीं बेचना है। तो उस दुकानदार ने, उस व्यापारी ने सोचा कि यार इस छोटे से गांव के मेले में कौन देगा इसको 100 रुपए,